Good morning, my dear students. Today we are ready with chapter number 15. Some natural phenomena. Some natural phenomena we are going to study today, and we know some common natural phenomena in the nature are first storms and cyclones, floods and droughts. Although these are natural disasters, but these are natural phenomena. Lightning and thunder. This is also a natural phenomena. And earthquake. These are some common natural phenomena we have seen quite often. Now, first of all, let us understand about lightning, because cyclone and storms we have studied in lower classes. So today we are going to see lightning. What is lightning? Basically, lightning is a very big spark that is seen in the sky during the rainy season. जब कभी बारिश होती है उसके दौरान आसमान में एक तेज चमक उठती है, दैट वी कॉल लाइटनिंग. व्हाट इज द कॉज ऑफ लाइटनिंग? लाइटनिंग होती क्यों है? लाइटनिंग इज कॉज्ड ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ क्लाउड्स either with themselves or with earth. While moving, these clouds keep on rubbing with atmospheric air or with themselves also, and because of this rubbing they develop charge on them. This charge, when gets discharged, a big spark is seen and also a crackling sound follows. This big spark that is seen during this discharging process is called lightning, and this crackling sound, that is very loud sound, which is heard after the spark, is called thunder. So lightning and thunder are the natural phenomena which are caused due to the discharging of clouds. Earlier it was seen that it is some supernatural phenomena. It is a kind of horror for the people. But now we understand that it is a natural phenomena, and this fact was first discovered by Benjamin Franklin. He was an American scientist. He discovered it in 1752. Now there comes atom charge discharging, yani cloud gets charged. So what is charge basically? Charge is an internal property, or you can call it an inherent property of any material, of any substance, due to which it either repel or attract the other objects. जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, उस इंटरनल प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं. चार्ज को हम कूलम में नापते हैं. एक साइंटिस्ट थे सर ऑगस्टिन डी कूलम, उनके नाम पे ये यूनिट आई कूलम. कूलम को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. Types of charge. How many types of charge do you know? Charge is of two type. Basically charge दो तरह का है. First is negative charge, माइनस साइन से डिनोट करते हैं. सेकेंड पॉजिटिव चार्ज, प्लस साइन से डिनोट करते हैं. नेगेटिव चार्ज को हम वेजिनस चार्ज भी कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज को हम विट्रस चार्ज भी कहते हैं. ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. A body which is having negative charge on it is called negatively charged. A body which is having positive charge on it is called positively charged body. And a body which has no charge on it is called neutral body. Yani body without charge is called neutral body. Properties of charge. What are the basic properties of charge? चार्ज की वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बट अप टू क्लास 8 जो प्रॉपर्टीज यहां पर सिग्निफिकेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूं. सबसे पहली प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. लाइक का मतलब एक जैसे, यानी अगर मैं प्लस चार्ज की बात करूं तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा और माइनस माइनस को रिपेल करेगा. तो प्लस चार्ज प्लस को दूर भगाता है, माइनस चार्ज माइनस को दूर भगाता है, यानी सिमिलर चार्ज रिपेल. दूसरी प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. यानी अगर मैं प्लस की बात करूं और साथ में माइनस की करूं तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो दिस इज व्हाट द अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज. तो सिमिलर चार्ज रिपेल बट
unlike charge attract each other. Also, charge on the different parts of a body get added to give the total charge on the body. पूरी बॉडी पर जितना चार्ज है वो उसके अलग अलग हिस्सों पर मिलने वाले चार्ज को जोड़कर मिलेगा, और ये चार्ज प्लस और माइनस के साथ जोड़ा जाएगा। अगर प्लस चार्ज है तो जोड़ा जाएगा और माइनस चार्ज है तो माइनस किया जाएगा। एक और प्रॉपर्टी यहां पर है, बेसिकली दिस इज द प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द ट्रांसफर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल है, बट ये चार्ज सबसे छोटी यूनिट ऑफ चार्ज के रूप में ट्रांसफर होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एंड इट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो सबसे छोटा चार्ज जो ट्रांसफर किया जा सकता है दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब भी चार्ज जाएगा वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जाएगा, चाहे एक इलेक्ट्रॉन जाए चाहे 10 इलेक्ट्रॉन जाए। तो अगर हम चार्ज ट्रांसफर की बात करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इट मे बी 5, 10, 12 और व्हाटएवर। नेक्स्ट हम कहते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं? मेथड्स ऑफ चार्जिंग आर 3 मेन मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज म्यूचुअल रबिंग। दो बॉडीज को म्यूचुअली रब कर देते हैं, एक दूसरे के साथ रगड़ देते हैं, इससे चार्जिंग हो जाती है। दूसरा होता है चार्ज कंडक्शन, यानी एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी से टच करवा देते हैं, चार्ज चल के चला जाता है, इसको हम कहते हैं चार्ज कंडक्शन। और तीसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन। एक अनचार्ज बॉडी के पास दूसरी चार्ज बॉडी ले आते हैं, बट पहले दो मेथड में दोनों बॉडीज को टच करवाना पड़ता है, थर्ड मेथड में बॉडीज को टच नहीं करवाना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन टचिंग मेथड। और पहला दो मेथड है टचिंग मेथड। कंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यहां पर हम सिर्फ आपको बताएंगे म्यूचुअल रबिंग। तो व्हाट इज द मेथड ऑफ रबिंग, यानी चार्जिंग बाय रबिंग? हमें पता है एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी तो उसका चार्ज 0 हुआ। इक्वल नेगेटिव और इक्वल पॉजिटिव चार्ज मिलके ही बॉडी न्यूट्रल होती है। बट हम इसको दूसरी तरह से कहते हैं, एक बॉडी के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपके लिए थोड़े नए वर्ड है। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। प्रोटॉन किसी भी बॉडी के बिल्कुल लास्ट में, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, वहां मौजूद होता है और वो मूव नहीं कर सकता। तो जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है, क्योंकि प्रोटॉन इतने अंदर धसा हुआ है बॉडी में, उसके न्यूक्लियस में इतने मजबूती से पकड़ा हुआ है कि वो बाहर नहीं निकल सकता। तो जो भी चार्ज निकल सकता है वो है इलेक्ट्रॉन, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, यानी प्रोटॉन कभी मूव नहीं करेंगे। नाउ हम बात करते हैं जब हम दो बॉडीज को म्यूचुअली रब करते हैं, जब दो बॉडी को हमने लगातार रबिंग की तो एक बॉडी हीट पाकर अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। अब ये लॉस्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां? एक बॉडी से निकले तो दूसरी पर जाएंगे। तो एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और दूसरी ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, एक से इलेक्ट्रॉन निकले दूसरी पर चले गए। सपोज पहली बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन खोए तो दूसरी बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन पाए, तो वन बॉडी लॉस इलेक्ट्रॉन, अदर बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन खोए हैं उसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज चला गया, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन पाए हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो हम कहते हैं द बॉडी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से, दैट इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। द बॉडी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, द बॉडी इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये हमारे पास मेथड था रबिंग का। तो अब रबिंग में हुआ क्या? हेंस इन म्यूचुअल रबिंग वन बॉडी गेट्स नेगेटिव चार्ज and other body gets similar but opposite charge,
इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। अगर एक बॉडी ने नेगेटिव पाया है तो दूसरी बॉडी ने इक्वल पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया है। तो दिस वे वी कैन चार्ज द बॉडीज बाय रबिंग। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है व्हेन यू रब ए कॉम्ब विद योर ड्राई हेयर। एक प्लास्टिक कॉम्ब आप ले, अपने ड्राई हेयर्स के साथ उसको कुछ देर रगड़े और फिर टेबल पर पड़ी हुई छोटी छोटी पेपर बिट्स के पास उस कॉम्ब को ले जाएं, या प्लास्टिक स्केल के साथ अभी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वो पेपर बिट्स उस स्केल पर या कॉम्ब पर चिपक जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ चार्जिंग, कॉम्ब को अपने हेयर के साथ रगड़ते हैं, ड्राई हेयर, ऑयली नहीं होने चाहिए। एक प्लास्टिक कॉम्ब को या एक प्लास्टिक स्केल को व्हेन आई रब विद माय ड्राई हेयर आफ्टर 10 to 15 times, this comb or scale gets charged. The proof of this charge is seen by attraction of small paper bits lying on the table. आप टेबल पर छोटे छोटे पेपर के पीस डाल दीजिएगा। आफ्टर रबिंग 10 to 15 times the comb with your hair, आप उनके पास ले जाएं तो यहां पर आपको दिखेगा कि वो पेपर बिट्स उसके ऊपर चिपक जाते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल है, आप अपने बालों से, अपनी बॉडी से, अपने कपड़ों से एक बैलून को रगड़े बार बार, कुछ देर रगड़ने के बाद आप उस बैलून को दीवार के पास ले जाएं तो बैलून चिपक जाता है विदाउट एनी ग्लू। तो दिस इज other evidence of charging. So student, today we have discussed about some common natural phenomena, lightning, charge, methods of charging and charging by rubbing. This is all about today's class. Thank you for watching.